Hello students, in this lecture we will continue our module 1. So module 1 is units and measurement. So in this module we already completed our first topic, and first topic was dimensional analysis, okay, and application of dimensional analysis. So now in topic 2 we will study significant figure, and in topic 3 we will study error in measurement. Okay, so in this lecture I will take significant figure, and after this I will take one more lecture in which we will take error in measurement. Okay, so let's start significant figure. So as you can see here, I want to measure a length of this glass slab, okay, by using a centimeter scale. Okay, so when I measure a length of this glass slab, a length comes out to be in between 5.6 centimeter and 5.7 centimeter. Okay, so as we know that a least count of a centimeter scale is 0.1 centimeter. Okay, least count means a minimum measurement which we can take by using any instrument. Okay, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट लिया जा सकता है वो उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट. जैसे सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल से जो मिनिमम मेजरमेंट आप ले सकते हैं वो मिनिमम मेजरमेंट है 0.1 सेंटीमीटर. ओके, तो 0.1 सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर स्केल का क्या हुआ, लीस्ट काउंट हुआ. ठीक है, तो लीस्ट काउंट का मीनिंग आपको समझ में आया. अब आगे देखते हैं कि इफ़ आई टेक अ मेजरमेंट ऑफ length of this glass slab, let the measurement will come in between, or a measurement comes in between 5.6 centimeter and 5.7 centimeter. जो measurement आया यहाँ से निकल के वो 5.6 सेंटीमीटर और 5.7 सेंटीमीटर के बीच की कोई वैल्यू आई. ठीक है, तो जो बीच की वैल्यू है जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ डेट दिस वैल्यू इज़ करेक्ट एंड डेट मेजरमेंट और डेट द वैल्यू इज़ 5.63 सेंटीमीटर. जो मेजरमेंट है उसके लेंथ का वो कितना है, 5.63 सेंटीमीटर. नाउ इन दिस 5.63 सेंटीमीटर, बिकॉज आई नो दैट बाय यूजिंग अ सेंटीमीटर स्केल आई कैन मेजर अ करेक्ट मेजरमेंट ओनली अप टू द फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वहाँ तक ही आप सेंटीमीटर स्केल से क्या कर सकते हैं, करेक्टली मेजर कर सकते हैं. ओके, एंड आई एम अनश्योर अबाउट 3, or I can say that I am unsure about the second digit after decimal. डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट आ रही है यहाँ पर जो 3 है वैल्यू, इसके लिए मैं क्या हूँ, अनश्योर हूँ. ठीक है, बट आई कंसिडर दिस मेजरमेंट एज अ करेक्ट वन. आई कंसिडर दिस मेजरमेंट एज अ करेक्ट वन. ओके, now because I consider this measurement as a correct one, so that it consists of significant figures. Okay, now these significant figures consist of reliable number plus first digit of unreliable number. तो जो significant figures होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, reliable number होते हैं. जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में 5 और 6 जो है हमारा ये क्या है, reliable number है. ओके, एंड 3 is a unreliable number और unreliable digit. ओके, so this 3, like if my reading would be 5.635. ओके, अगर मान लें कि रीडिंग हमारी 5.635 होती तो 6 तक तो हमारा रिलायबल है. 5.6 डेसिमल के बाद एक डिजिट तक तो हमारा क्या रिलायबल है. अब 35 जो नंबर आ रहा है हमारा, अब 35 नंबर जो है वो क्या है, अनरिलायबल है. तो अनरिलायबल नंबर की हम क्या लेते हैं, ओनली 1 डिजिट लेते हैं, फर्स्ट डिजिट. तो फर्स्ट डिजिट हमने क्या ले ली, 3 ली यहाँ से. तो ये हमारा जो 5.63 हुआ ये हमारा करेक्ट मेजरमेंट हो गया इसकी लेंथ का. और इस करेक्ट मेजरमेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 5, 6 एंड 3. और इन सिग्निफिकेंट फिगर्स में से जो 5 और 6 है वो तो हमारी रिलायबल डिजिट है, और जो 3 है वो क्या है, हमारी अनरिलायबल डिजिट. ओके, सो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को या सिग्निफिकेंट डिजिट को. ओके, नाउ लेट्स सी. Now let's see here rules for counting significant figures. Okay, the first is for a number greater than 1. Okay, so in this the first rule is all non-zero digits are significant. Okay, for example these numbers are given and in these numbers we have to find out the significant figures.
Like first number is 2357. So in this 2357, all are the non-zero digits. So all non-zero digits are the significant figures. So here significant figures are 4, in this significant figures are 3, in this significant figures are 1 2 3 4 5 significant figures. In this number 1 2 3 4 significant figures. Okay, now so this is a first rule. Now second rule is all zeros between two non-zero digits are significant. Okay, so let's see here in this example. So there is two zeros in between the non-zero digits. Okay, so here number of significant figures are 4, here number of significant figures are 3, here number of significant figures are 1 2 3 4 5 significant figures. Okay, so here 1 2 3 4 significant figures. Okay, so if a zero comes in between the non-zero digit, then we consider zero as a significant figure. Okay, now let's see this third rule. In third rule, if the number is without decimal part, then trailing zeros are not significant. Okay, so in this, if we have a number without decimal, okay, so we have this number, for example we have this number and this number is without decimal. So in case of without decimal, we consider trailing zeros, जो पीछे के जीरो है, all these trailing zeros are non significant. जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे या जो पीछे की तरफ जो जीरोस आ रहे हैं, ये सारे क्या होंगे, हमारे नॉन सिग्निफिकेंट. तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो जो वैल्यूज़ हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, वही हमारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी. तो इस फर्स्ट वाले में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो हमारी कितना आएंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, यहाँ से देखें तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रूल हो जाएगा, थर्ड. नाउ यू कैन सी दिस फोर्थ रूल. नाउ फोर्थ रूल, ट्रेलिंग जीरोस इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट. तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है, तो डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, यानी जो पीछे की तरफ वाले जीरोज हैं, उन्हें क्या कंसिडर करेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे. तो यहाँ हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हो गई, प्लस 1 2 3, दीज जीरोज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट. ओके, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर. Now let's see here 1 2 3 4 5. So total significant figures how much, 5. Okay, so these are the four rules when a number is greater than 1. Now you can see here, if a measured quantity is given, so here is a measured quantity 1500 mm. Now if I apply a rule number 3, so according to rule number 3, there is only 1 to 2 significant figure. Okay, but when we get a measured quantity, then we consider these zeros also as a significant figure. तो ये ध्यान रखना है कि measured quantity अगर given, आप कैसे पता लगाएंगे measured quantity, इसकी यूनिट से. पीछे यूनिट क्या दी हुई है उसकी, mm. तो mm यूनिट दी है, मतलब इसको मेजर्ड किया है, लेंथ को मेजर किया है. ठीक है, तो ये एक मेजर्ड क्वांटिटी. तो मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर जो जीरोज हैं उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे. अब अगर आप इसकी यूनिट चेंज करते हैं, तो यूनिट चेंज भी अगर आप करोगे तब भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो जितने उतने ही रहेंगे. जैसे आप देखें, इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो इफ़ यू चेंज इट इनटू अ मीटर, तो मीटर में आपके पास आएगा 1.500 मीटर. ओके, अब अगर इसमें हम रूल लगाएं कि डेसिमल अगर आ जाता है, तो डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरो है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर ही होते हैं. ये वाला रूल हम लगाते हैं, चौथा रूल, फोर्थ रूल जो है वो रूल आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे, 4 आ रहे. तो इन ईच केस, इन बोथ द केसेस, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स सेम, 4. ठीक है, तो अगर आपको मेजर्ड क्वांटिटी मिलती है, तो मेजर्ड क्वांटिटी में आपको जो ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं उनको भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है. ठीक है, सो दीज आर द रूल्स फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1. ओके, नाउ लेट्स सी हियर फॉर अ नंबर लेस देन 1. लेस देन 1 के लिए क्या रूल है, एनी जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट. ऑल जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. ओके, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे आपको कोई वैल्यू दी हुई है 0.0026, तो 0.0026 में जो वैल्यूज़ हैं आपके, यानी ये नॉन जीरो डिजिट, या पहली नॉन जीरो डिजिट कितनी आ रही है, 2. तो 2 के लेफ्ट साइड में और डेसिमल के राइट साइड में जितने भी ज़ीरो हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट है. ध्यान से सुन लें, डेसिमल के राइट साइड में
और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हुई हमारी 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ऐसे यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। यहाँ देखें तो अब डेसिमल के राइट साइड में, ओके, डेसिमल के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो है, तो 2 जीरो जा रहे हैं, तो ये दोनों तो हमारे क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बट जो भी जीरो पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रूल था कि डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं उनको क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, रूल स्टडी किया है हमने। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ऐसे यहाँ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी रूल्स फॉर राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की राउंडिंग करने के क्या रूल है। So you can see here this example C1.54. Now if you want to round this number up to a 1 digit after decimal, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक अगर आपको इसकी राउंडिंग करनी है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट कितनी है, इसमें 5 है, ठीक है। 5 तक अगर हमें इसकी राउंडिंग करनी है तो 5 के पीछे वाला हम देखेंगे तो 5 के पीछे कितना आ रहा है, 4। यू कैन सी हियर, ओके, 5 के पीछे कितना आ रहा है, 4। तो 4 इज लेस देन 5, ठीक है। 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो आगे की जो डिजिट है उसका एज इट इज रखने देंगे तो वो 7.5 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए 7.83। अब आपको डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है, पहली डिजिट क्या है, 8 है, यहाँ तक की राउंडिंग करनी है। तो 8 के पीछे वाला नंबर देखें, 8 के पीछे वाला नंबर कितना है, 3 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो 8 को एज इट इज रहने देंगे। तो हमारे पास राउंडिंग करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7.8। ओके, तो रूल क्या हो गया, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, ओके, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे यहाँ पर हमें कौन सी ड्रॉप करनी है, 4 को हम ड्रॉप कर रहे हैं इसमें, तो 4 को ड्रॉप कर रहे हो, 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो इसके आगे वाले डिजिट को एज इट इज रहने देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम 3 को ड्रॉप कर रहे हैं, 3 भी 5 से छोटा है, ठीक है, तो 8 को एज इट इज रहने देंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल है, अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो, जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से ज़्यादा है, इफ़ इट्स वैल्यू इज मोर देन 5, देन वी इंक्रीज अ प्रीसीडिंग वैल्यू। प्रीसीडिंग वैल्यू जो है उसको 1 से हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रीसीडिंग वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 को 1 से इंक्रीज कर देंगे 7.6, ठीक है। ऐसे 7.89 में हम अगर 9 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 9 5 से बड़ा है तो इसके आगे वाले डिजिट क्या है, 8, तो 8 को हम 1 से बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रूल है, ठीक है। दोनों रूल्स में हम देख रहे हैं, हम किससे चेक कर रहे हैं, 5 से। जिस भी डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 से छोटी है तो उसके आगे वाले डिजिट को क्या करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, और अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से बड़ी है तो आगे वाले डिजिट को क्या करते हैं, हम 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो 5 ही हो, ठीक है, जैसे 6.350 है, आपको 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करने के लिए हम देखते हैं कि 5 के पीछे अगर 0 है, ठीक है, ध्यान से सुने कि 5 जो है 5 को ही हमें ड्रॉप करना है, और 5 के पीछे अगर 0 है तो आगे अगर ऑड नंबर है तो उसको तो 1 से बढ़ा देते हैं और इवन को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। ऑड को 1 से बढ़ा देते हैं और जो इवन है उसको एज इट इज रहने देते हैं। जैसे 6.350 है तो 6.350 में हमें 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 के पीछे अगर 0 है, 5 के पीछे अगर 0 है तो उसके जो आगे वाली डिजिट है और वो डिजिट अगर ऑड है तो उसमें क्या करते हैं, अपन 1 को ऐड कर देते हैं, तो 1 को ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 6.4। ऐसे ही यहाँ देखें 6.450, आपको 5 को ड्रॉप करना और 5 के पीछे कितना है, 0 है, तो इसके आगे वाली जो डिजिट है उसको चेक करेंगे, आगे वाली डिजिट क्या है हमारी, इवन है, तो इवन है तो उसको एज इट इज रख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस ये है कि आप जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं जैसे और वो 5 ही है और उसके पीछे अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है, जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और 5 के पीछे के जो डिजिट है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो हम जो आगे वाले डिजिट है उसे 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो। जैसे 3 है तो इसको 1 से इंक्रीज़ कर देंगे तो कितना जाएगा, 18.4। यहाँ पर देख लें ये कितना 8 है, तो 5 के पीछे क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो आगे वाली डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे
तो ये कितनी जाएगी 6.9। ओके, सो ये रूल्स हैं। अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो कितनी है 5 है, तो पहला आपको ये चेक करना है कि 5 के पीछे कहीं ज़ीरो तो नहीं है। ज़ीरो अगर है तो उसके आगे वाले डिजिट चेक करना, अगर उसके आगे वाले डिजिट इवन है तो उसे एज इट इज़ रहने देना, और अगर उसके आगे वाले डिजिट ऑड है तो उसको 1 से अपन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऐसे ही अगर 5 आप ड्रॉप कर रहे हो और 5 के पीछे नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट है तो 5 के आगे वाले डिजिट में हम क्या करेंगे, 1 1 ऐड कर देंगे, या आगे वाले डिजिट को 1 से हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो रूल्स हैं क्या है, रूल्स फॉर राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नाउ लेट्स सी हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशन हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो उसमें क्या हमें ध्यान रखना है, तो पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो व्हेन वी विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देन वी विल चेक द क्वांटिटीज और द नंबर्स गिवन। जैसे यहाँ पर हमें नंबर दिए हुए 3.12 एंड 6.1, तो इनमें हमें देखना है कि ऐसी कौन सा नंबर है जिसमें कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है 3.12 है, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रही है 2। यहाँ पर देखें 6.1, तो 6.1 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रही है, ओनली 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, आंसर में भी जो डेसिमल के बाद डिजिट आनी चाहिए वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, उतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3.12 और 6.1 को हमने ऐड किया तो ऐड करके आया 9.22। अब यहाँ पर हमारे पास 6.1 है। ठीक है, तो 6.1 यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमें भी इसको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग करनी पड़ेगी। तो डेसिमल के बाद पहली डिजिट कितनी है 2, तो 2 के बाद वाला जो 2 है इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इसको ड्रॉप करोगे तो इसकी राउंडिंग होगी, और राउंडिंग के रूल लगा दो इसमें। ये 2 जो है ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसके आगे वाले डिजिट क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, 2 जो है इस पीछे वाला जो 2 है इसको ड्रॉप करना है हमें। तो ड्रॉप करना है तो इसको चेक करेंगे ये 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 5 से क्या है, छोटा है, 5 से स्मॉल है, तो 5 से छोटा है तो इसके आगे वाले डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे। तो आंसर हमारा कितना जाएगा 9.2। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, जैसे 68.29 है और उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 57.8 को, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट ही आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आया 10.49। ओके, सो 10.49 में से हमें 9 को जो है अब यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 9 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, राउंडिंग करेंगे तो 9 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। तो 9 5 से बड़ा है तो हम आगे वाली डिजिट जो है 4 उसको क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको 1 से बढ़ा दो आप, तो आंसर जो हमारे पास आएगा कितना आएगा 10.5। ओके, तो ये रूल तो हम लगाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होने चाहिए स्मॉलेस्ट वाले। ठीक है, स्मॉलेस्ट कैसे, जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 एंड 1.4 को, तो 1.2 एंड 1.4 में अगर सिग्निफिकेंट फिगर आप देखें तो दोनों में ही कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 1 2 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। ठीक है, तो आप पहले इनको सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 1.68। ठीक है, अब 1.68 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं आपके, 1 2 3 3 आ रहे हैं, तो 2 होने चाहिए। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसकी राउंडिंग करेंगे। तो राउंडिंग कैसे होगी कि 8 को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 को कैसे ड्रॉप करें, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो राउंडिंग ऑफ जब हम करेंगे तो इसके आगे वाली क्वांटिटी को 1 से अपन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना जाएगा 1.7। ओके, अब ऐसे ही यहाँ देखें हम 7526 है, इसको डिवाइड किया हमने 23 से, तो हमारे पास आया 327.217। अब यहाँ पर देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इधर कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा जो आंसर है उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ओनली 2 ही होने चाहिए। तो 2 होने चाहिए, तो आपको इस 7 को 7 और ये पीछे की पूरी क्वांटिटी है इसको करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम तो 7 को देखते हैं। ठीक है,
अब 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 7 5 से बड़ा है तो इसके आगे की जो है वैल्यू उसको क्या करेंगे 1 से बढ़ा देंगे, तो ये कितना जाएगा 33। ठीक है, तो ये रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं उनका, तो ये रूल्स हम फॉलो करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो आप फाइंड आउट करेंगे, किसी कोई नंबर आपको दिया हुआ उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको फाइंड आउट करना है, तो रूल क्या होते हैं उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसकी राउंडिंग एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या हैं, ये सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम अब देखेंगे एरर इन measurement, and after completing both these topics we will do numerical problems. Okay, thank you.